So we'll share some few thoughts and post of which we can take some questions that you might have. So uh, we can have a better engagement, right? So I'll share my screen. Yeah, okay, right. So see, basically the current market condition that we are into, it's a very tricky and challenging situations that we are. Day in day out the things keeps on changing and evolving, and accordingly the market has become very much volatile, right? So from that point of view, the current session should be valuable in terms of the investment strategy that you should have as we move forward, right? So that is the whole intention to share. What we will do is that we'll cover the pulse of the market as to how it looks like, what has happened so far, right? So we'll start with the historical part in terms of how the market had been in the month of March, what are the current narratives which are there in the market. That means the newspaper headlines, the media or Twitter or social media and so and so forth, right? तो वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है और उसके संदर्भ में हिस्टोरिकली हाउ थिंग्स हैव हैपेंड। देन द व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ द मार्केट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाजार को अभी काफ़ी वरी कर रही है और उसके बारे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी विल सी, फॉलोड बाय द वैल्यूएशंस and the opportunity that are currently prevailing for us for long term investing, right? So that is how the whole flow will be for the next 40 to 45 minutes. शुरुआत करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट जो आज की तारीख के अंदर आज की सिचुएशंस में काफ़ी सूटेबल है, राइट? एंड इट इज़ बिंग टोल्ड बाय मार्क ट्वेन अराउंड 100 years बिफोर। और ये 100 साल पहले जो कही थी बात वो आज की तारीख में भी उतनी ही वैलिड है, राइट? एंड व्हाट ही सेड दैट इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर्स यू आर अनइन्फॉर्म्ड, and if you do read them you are misinformed, right? So there is nothing against the media or the newspaper, but the point that has been highlighted, that we as a human being get carried away with the news flows, right, with the emotions, with the sentiments. And when you read and see the same set of news in different formats, and every now and then that news converts into belief, right? And when the news converts into belief, belief leads to actions, right? And actions taken on the basis of the news, which might be right, which might not be right, but basically the actions are taken based on the emotions, right? जो चीज़ें हमने बार बार देखी उससे देख के हमने कोई एक ओपिनियन बनाया और वो ओपिनियन देख के हमने कोई एक्शन ली, दैट लीड्स टू मेजोरिटी ऑफ द टाइम द डिसीजन बीइंग नॉट सो ऑप्टिमम, राइट? हमारे फेवर में वो काम नहीं करता और एकदम इन्फीरियर डिसीजन हम लोग लेते हैं, नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन, राइट? एंड दैट इज व्हाट typically things happens with a human being, I'm saying, right? मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, because by nature human beings we are emotional, right? So that is how things happen. And in this current context of the market environment, our decisions or the mind can be framed based on the emotions, and that is what we have to be conscious about, because ultimately we are investors, we are here to make money, and investors are expected to take rational decisions, right? And that is what the whole things are. सो what is that we have learned about the market, हमने बाजार के बारे में क्या सीखा है, हमने जो सीखा है वो हम लोग देखेंगे, पर उसके पहले एक नज़र करते हैं कि हाउ द मंथ ऑफ मार्च हैड बीन सो फार। तो मार्च 26 का महीना जो लास्ट मंथ था, दैट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द मंथ जो हमने देखा पोस्ट मार्च 2020, राइट? सो लास्ट के 6 साल हैं, उसमें से लास्ट 6 साल के अंदर हमने ये पहला ऐसा महीना देखा which has seen a single month fall of more than 10%, right? तो इसके पहले 6 साल पहले मार्च 2020 था, उसके बाद मार्च 2026 was the month wherein we saw the fall in the market which was in excess of 10%, right? So from that point of view the month of March was very I would say a different from the price movement. Apart from that, we saw कि March 2026 was the month wherein the market has given a negative returns for 4 consecutive मंथ्स पुट टुगेदर, राइट? और ये भी काफ़ी कई रेयर बार होता है बाजार के अंदर जहाँ पे बाजार लगातार 4 महीनों तक नेगेटिव रिटर्न्स देता है, एंड दिस वाज अगेन वन काइंड ऑफ अ मंथ व्हिच लेड टू अ 4 month ऑफ नेगेटिव रिटर्न।
Interestingly, what the price pattern we can see that whenever historically market has given a negative return consecutively for 3 or 4 months, more than 3 months, right? Then in that case, we have seen the followed month had been very interesting or maybe positive in terms of the price movement, right? तो आप देखो, it was a period जैसे कि say for example April 22 to June 22 there were 3 consecutive months of negative return. फिर जुलाई और अगस्त में काफी अच्छा हमने बाउंस बैक देखा. सिमिलरली दिसंबर 22 से फरवरी 23 तक का 3 महीना नेगेटिव रिटर्न, उसके बाद हमने काफी अच्छा बाजार में पॉजिटिव रिटर्न देखा. सिमिलरली अक्टूबर 24 से फरवरी 25 काफी उसके बाद काफी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देखा हमने, एंड सो फोर्थ, राइट? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू we think that we are at a situation wherein things have gone down, or maybe the market seems to be oversold as far as the near term is concerned, right? Apart from that, from the sector point of view, in March last month, the highest falling sectors has been the banks, real estate and PSU banks, followed by auto. और उसके साथ साथ हमने देखा कि हेल्थ केयर, पावर एंड टेक्नोलॉजी वैसे सेक्टर्स जो बाजार से काफी कम गिरे. और पूरे साल का अगर नजरिया देखें फ्रॉम जनवरी टू मार्च ऑफ 26, तो ओवर देयर वी कैन सी दैट पावर, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, साइक्लिकल पार्ट ऑफ द मार्केट डिड वेरी वेल. And at the same time, on the other end, the real estate, technology, consumption and banking sector, particularly private banks, has not done so well as far as this full calendar year is concerned, right? So that is how the whole texture of the market had been so far in 2026. Now coming to the market, what we know about market, what we have learned about the equities, that equities always create wealth over the long period of time, right? So 1979 124 ka Sensex, currently we are at around 72,000 approximately, right? So over the 47-year period, market has done a CAGR of around 14.50, है ना, 14.5% का CAGR रिटर्न्स है 100 रुपए का 72,000, and so it is almost like a money being doubled over a 5-year period, right? तो रूल ऑफ 72 होता है, उसको 72 को रिटर्न से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिलेगा जो अप्रोक्सीमेटली आपको पैसे को डबल करेगा, राइट? सो फ्रॉम दैट इफ आई डिवाइड 72 बाय 14.5 आई गेट एन आंसर ऑफ 5 years. तो 5 साल में बाजार में पैसा डबल हुआ है अभी तक की हिस्ट्री के अंदर, एंड दैट इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट इज. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, देन इट क्रिएट्स अ wealth for us, right? So that is what we have learned. But what does the market says? Market says that this is a partial truth. ये सच्चाई जो है ना वो पार्शियल सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है. पूरी सच्चाई क्या है? ये पूरी सच्चाई ये है कि ये जो 14.5% रिटर्न है ना वो लीनियर वे में नहीं आते, राइट? व्हेन आई से लीनियर वे, दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स नहीं है 14.5%. ये 14.5% जो रिटर्न है लास्ट 47 ईयर्स के, दैट रिटर्न्स आर वॉलेटाइल इन नेचर, राइट? दे आर वॉलेटाइल इन नेचर. से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 2008 में पैसा लगाया है ना, तो 2008 से लेके अभी तक 2026, दैट इज एन ईयर ऑफ दैट हैज बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स पीरियड. 18 साल हो चुके हैं उसके अंदर, और ये 18 साल के अंदर बाजार का रिटर्न खाली 9% है. फ्रॉम जनवरी 2018 टिल मार्च ऑफ 2026 द रिटर्न्स आर ओनली 9% CAGR, ठीक है? बट हमने देखा कि लास्ट 47 ईयर्स में तो 14% बना है. So I'm saying the returns are volatile, returns are not certain. और ये volatility पीछे का रीजन क्या है? Some of the other reasons और maybe the news flows, है ना? तो ये पूरा लास्ट 47 ईयर्स का ये न्यूज इवेंट है, और ये हर एक न्यूज इवेंट की वजह से बाजार डिस्टर्ब हो गया था वो टाइम के अंदर, एंड इट हैज फॉलन डाउन फॉर सम और द अदर रीजन, राइट? यू स्टार्ट फ्रॉम 1990 विच वाज अ गल्फ वॉर, फिर उसके बाद आप 2000 में .com बबल है, फिर आपका यू हैव सीन वेरियस इवेंट्स ऑफ यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008. फिर हमने देखा क्यूइट क्वांटिटेटिव ईजिंग का टेपरिंग शुरू किया था 2014 के अंदर. देन वी सॉ डीमोनेटाइजेशन फेज, देन वी सॉ the various geopolitical tension in the form of नॉर्थ कोरिया मिसाइल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक 2020 में, फिर बाद में रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, एंड सो फॉर, राइट? सो लॉट ऑफ इवेंट्स. कई इवेंट्स छोटी होती है जहाँ पे बाजार थोड़ा कम गिरता है, और कई इवेंट ऐसी होती है जिसकी वजह से बाजार तेज गिरता है, राइट? बट द कॉमन पैटर्न इज दैट कि एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड सम और द रीजन जिसकी वजह से बाजार नाराज हो जाएगा और थोड़ा हल्का सा गिरेगा, या तो गिरेगा टेम्पररी, राइट? So that is what the key lesson that we have to keep in mind, that the returns in equities are not linear, they are volatile in nature, right? And henceforth we have to be always prepared for the volatility in the market which comes for some or the other reasons. And this is one of the situations that we are into, wherein because of the geopolitical tension between Iran and US and Israel, we are into a situation wherein market has again got worried, and it has
fallen down, right? So the common thing is that what? Common thing is the worry part, right? Last 47 years, the common thing is worry, right? And the second common thing is temporary fall, right? And the third common thing is that at the end of the day, bazaar ऊपर ही जाता है, right? So if you want to frame a statement which captures all the essence of this scenario, then that common statement can be like, volatility is always temporary and growth is permanent, right? From 100 to 72,000, it's a growth, right? But in between, what we have seen, the worry factor, it's a volatility which was temporary, right? And that is how the whole thing is. And this not only applies to India, it applies to everywhere in the world. Growth is permanent, right? And that is what the whole thing is. If you look at the last 6 years, 2020 के बाद अभी तक, है ना, अभी हमने देखा कि बाजार ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है. इट हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल मार्केट दैट इंडिया हैज सीन, राइट? एंड दैट वाज द लास्ट 6 years, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड. तो ये जो बड़ा से बड़ा बुल मार्केट हमने देखा ना, वो बुल मार्केट के अंदर भी बाजार हर साल गिरा है बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजंस, राइट? 2020 में इट वाज अ कोविड पैंडेमिक, वहाँ पे बाजार 40% अप्रॉक्सीमेट गिरा था. 40% गिरने के बाद अगर किसी ने वहाँ पैसा लगाया तो अगले 3 साल के अंदर 30% CAGR रिटर्न बना. 2021 के अंदर बाजार फिर से गिरा फेड की टेपरिंग की न्यूज की वजह से, एंड दैट फॉल वाज व्हाट, 10%. 10% गिरने के बाद अगर किसी ने पैसा लगाया तो अगले 3 साल के अंदर 12% CAGR पैसा बना. 2022 में फिर से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ जिसकी वजह से बाजार 16% गिरा. गिरने के बाद अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो वहां से 3 साल के अंदर 17% CAGR रिटर्न बना. 2023 के अंदर फिर से बाजार गिरा 16% बिकॉज ऑफ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट. वहां गिरने के बाद अगर किसी ने पैसा लगाया तो वो दे आर इनटू द मनी. अभी 3 साल खत्म नहीं हुए, राइट? बट स्टिल दे हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. Similarly, 2024, again market fell down because of the slowdown and because of the inflation, global inflation, right? And that fall was around 10%, right? And we are yet to see the 3-year return, but still from there on up till now, people would have made a good amount of money, right? 2025, similar tariff shock, market fell down by 9%. 2026 के अंदर फिर से हम लोग देख रहे हैं बाजार करीबन 11% गिरा हुआ है बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल US conflict. And from here on, we are into very interesting situation as we move forward, right? So we can see that market falls every year. Last 47 years का ये हिस्ट्री है जहाँ पे बाजार हर साल गिरा है. कई बार कम गिरा है, कई बार ज़्यादा गिरा है, right? But the average fall has been around 20%, and we see that every year market falls between the range of 10 to 20% almost every year, right? कई बार हमें महसूस होता है, कई बार हमें महसूस नहीं होता. But the history of the market says that market falls every year, right? In spite of falling, एज आई सेड, द ग्रोथ इज परमानेंट. तो हमने देखा कि अगर बाजार गिरता भी है हर साल, विच इज अ इंट्रा ईयर फॉल, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 80% ऑफ टाइम बाजार ने साल भर साल पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, राइट? सो आउट ऑफ 46 years, 37 years, मार्केट हैज गिवन अ पॉजिटिव ईयर, पॉजिटिव रिटर्न्स इन अ पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर, विच इज योर ग्रीन बार. ग्रीन कलर के जो बार्स आप देख रहे हो ना, वो सालाना रिटर्न है, हर साल के रिटर्न चाहिए, ठीक है? तो हर साल पॉइंट टू पॉइंट जनवरी से दिसंबर 80% बाजार पॉजिटिव रहता है. बट ये जनवरी से दिसंबर 12 महीने है ना, उसके अंदर विच इज इंट्रा ईयर, बाजार हर साल गिरता है. कई बार 10, कई बार 15, कई बार 20, 25, मुझे नहीं पता कितना होता है परसेंटेज, पर मुझे इतना जरूर पता है कि बाजार गिरता है हर साल, राइट? एंड दैट इज नथिंग बट द वॉलेटिलिटी. बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, the growth is something which is a permanent factor, which you can see that 80% of time on a calendar year basis, year on year, साल पर साल, market has given a positive returns, right? So that is how the behavior of the market is, and this is the behavior of last 46 years. और ये 46 years का behavior जो है ना, वो pattern बन गया है, and it remains a pattern which is the permanent in nature, right? So these are the things. Now coming to the part of why this fall, ये fall हुआ क्यों है? तो every one of you know that there is a conflict between the three nations, and that has led to the disruption of supply chain, है ना? supply chain of what? supply chain of oil and gas, correct? तो ये ऑयल एंड गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और उसका सप्लाई चेन है जो डिसरप्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस conflict that we are seeing in West Asia, right? Now what this supply disruption is all about? The supply disruption is all about the sea transportation, the transportation mode of sea, है ना? तो the transportation of oil and gas through the sea, which was the Strait of Hormuz, है ना? वो पर्शियन गल्फ के अंदर एक 33 किलोमीटर का एक नाला है
इन द गल्फ ऑफ पर्शियन, राइट, जहाँ से ये ऑयल एंड गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन है स्टॉप्ड, करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस वॉर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नाला जो था ओशन के अंदर, जिसके जरिए ये ऑयल एंड गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता था, वो अभी स्टॉप हो चुका है। उसके जरिए पूरे वर्ल्ड में करीबन 30% ऑयल एंड गैस की डिमांड रिक्वायरमेंट फुलफिल होती थी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मोड, राइट, इट हैज स्टॉप्ड। So because of which what has happened, it has led to the rise in the prices of oil and gas, particularly the oil, right? और ऑयल के प्राइस की वजह से इतना सारा गिरावट बाजार के अंदर क्यों होता है? वो इसकी वजह से होता है कि बिकॉज ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिसिन दैट वी यूज, क्लोथ दैट वी वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, मशीनरीज, अप्लायंसेस, पैकेजिंग गुड्स, आप कोई भी मुझे एग्जांपल दे दो, हर एक चीज जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर बेसिक रॉ मटेरियल जो है ना वो ऑयल एंड गैस है, राइट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइफलाइन ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, एंड व्हेन दिस लाइफलाइन of the entire humanity, which is the oil and gas, gets disrupted, prices go up, then obviously the markets will get worried, government will get worried, countries will get worried, right? So it is not only India, whole world, every country of the world is getting worried. जिसका डिपेंडेंसी ज़्यादा है इस पे वो ज़्यादा वरीड है, जिसका डिपेंडेंसी कम है वो कम वरीड है। बट कम और ज़्यादा की डेफिनेशन में हम लोग बात कर सकते हैं, बट क्या वरी सबके लिए? आंसर इज वरी इज फॉर एवरीवन, right? And because of which we have seen this entire volatility, right? In the context of India, how much important is this Strait of Hormuz, जो मैंने पर्शियन गल्फ के अंदर ये छोटा सा 33 किलोमीटर का जो ये नाला है, वो हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके जरिए हम लोग करीबन 47% हमारी क्रूड की रिक्वायरमेंट जो है ना उसके जरिए हम लोग फुलफिल करते हैं, और वो अभी स्टॉप हो चुका है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ विच द थिंग्स हैव गॉन फॉर अ बिट ऑफ अ uncomfortable situation, right? So that is how the whole things are, and we import a lot of oil, right? हमारी टोटल इंपोर्ट की जो आइटम्स लिस्ट है 1 2 3 4, अगर मुझे इंपोर्ट की आइटम लिस्ट मुझे अगर नोट डाउन करना है ना, तो उसमें से नंबर 1 जिसका नाम आएगा इट वुड बी क्रूड फॉर इंडिया, राइट, एंड व्हेन द प्राइसेस ऑफ द क्रूड गोज अप, देन इन दैट केस फॉर अस टू बाय अ क्रूड बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव सिचुएशन। और कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंसिव हो जाती है ना तो घर का खर्च जो है ना वो बढ़ जाता है, राइट, हमारे घर का खर्च बढ़ जाता है, और हमारे घर का जब खर्च बढ़ जाता है तो आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व होती है, राइट। सो इन दैट केस द इंडिया इज अवर हाउस, एंड आवर हाउस एक्सपेंसेस has gone up in last 1 month, and because of which the things have become bit of a shaky in nature, है ना, उसकी वजह से हमने काफ़ी सारी उतार चढ़ाव देखे। अभी इसका सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देखा, ये क्रूड जो 76 पे था वो 120 हो चुका था, 58% का जंप देखा हमने वॉर की वजह से, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाने की वजह से। बाजार में 16% का नेगेटिव इफेक्ट देखा हमने, रूपी करीबन 4.5% डेप्रिशिएट हो गया, और 10 ईयर जीसेक यील्ड वेंट अप बाय 50 बिप्स, राइट। दिस वाज द सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट दैट वी सॉ। Whether there is a fundamental change in the company's profitability, then in that case I would say in the near term, as of now there is no fundamental change. हम काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहे थे एज एन इकोनॉमी, एज ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ऑफ वेरियस मेजर्स जो लिए गए थे इकोनॉमी में, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स, फिर जीएसटी रेट कट, राइट। तो उसकी वजह से क्या हमने देखा था कि इकोनॉमी में एक रिवाइवल का एक पैटर्न हमने देखा था कि अभी ऊपर के बाहर आ रही है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम आउट हो चुकी है और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी अभी संभल रही है, राइट। सो एज यू कैन सी कि Q2 FY26 और Q3 FY26 वाला पीरियड था ना, वहाँ पे करीबन डबल डिजिट हमने प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखा था, काफ़ी अच्छा। फिर बाद में ये फिर से डिसरप्शन आ गया और चीज़ें इधर उधर हो गई। सो इफ द सिचुएशन डजंट गो लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये जो मामला है ना कन्फ्लिक्ट का, वॉर वाला, अगर वो लंबे समय तक नहीं चलता, देन इन दैट केस वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, राइट। हमने ऑलरेडी रिकवरी देखी है, और एक आध महीने का 2-3 महीने का डिसरप्शन अगर ऑयल में होता है तो वी कैन मैनेज। बट अगर ये डिसरप्शन लंबे समय तक चलता है और अगर क्रूड प्राइस नीचे नहीं आता, देन इन दैट केस एक सिचुएशन उभर के आ सकती है बाहर, विच कैन बी अनकंफर्टेबल इन नेचर, राइट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। ऐसी उम्मीद है कि ये Q4 FY26 जो आज अभी TCS से शुरू होगा, ऐसा लग रहा है कि ये जो आखिर क्वार्टर है पूरे साल का है, फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। मार्केट जो है ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग
पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार अभी चिंतित है कि ये क्रूड का प्राइस अगर नीचे नहीं आया तो प्रॉफिटेबिलिटी कैन स्लो डाउन, right? And that is how the things are. So in the near term, if for next 2 to 3 months we are comfortable, but if the situation doesn't improve in next 2 to 3 months, then again we have to review. हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए as far as the investments in the markets are concerned, right? So that is how the whole thing are. नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिकल लेसन्स, मैंने बताया कि ऐसी टाइप के वॉर इवेंट, पेंडेमिक, वो सब चीज़ें लास्ट 47 ईयर्स में हमने कई बार देखी है। इससे भी आई वुड से वर्स्ट सिचुएशंस हमने देखी है। से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, राइट, द क्रूड अबव $100, रशिया यूक्रेन वॉर 2022, वो टाइम के अंदर क्रूड 6 महीना $200 के ऊपर टिका था फॉर 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स। अभी तो एक ही महीना हुआ है, बाजार 11% एक महीने में, और फ्रॉम द पीक ऑफ सितंबर 24 16% गिर चुका है ना। ये खाली एक ही महीना हुआ है हमारा, बट हमने रशिया यूक्रेन वॉर में हमने 6 महीना देखा था क्रूड वॉज अबाउ $100, राइट। और वहां से आपको पता है कि हम लोग अभी भी 72 पे आके खड़े हुए हैं, राइट, एंड सो फोर्थ। तो काफी सारी चीजें ऐसी 47 ईयर्स में हो चुकी है, हम लोगों ने ओवरकम उसको किया है, और ओवरकम करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, राइट। सो उम्मीद है कि ये भी हम लोग ओवरकम कर लेंगे, राइट। वी कैन नॉट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी, बट उम्मीद है कि हम भी ये चीजें ओवरकम कर लेंगे एज ए ह्यूमैनिटी वर्ल्ड ओवर, राइट। तो अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखोगे ना, तो हर बार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस मोरलेस आपको सेम ही दिखेगी। जो लेफ्ट वाला जो हेडलाइंस है न्यूज़पेपर का, दैट वाज इन द पीरियड ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर 2022, राइट। सिमिलर वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी न्यूज़पेपर हेडलाइंस। रूपी एट लाइफ टाइम लो, द पुटिन प्रेसेस द न्यूक्लियर बटन, वर्ल्ड वॉर 3 फियर, क्रूड एट 130, क्या पेट्रोल के दाम 150 रुपए हो जाएंगे, काइंड ऑफ ए न्यूज फ्लोज, राइट। न्यूज़पेपर हेडलाइंस हमने देखा 2022 में, करेक्ट। हम लोग उसको पीछे छोड़ के आ चुके हैं, अभी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं उसको, राइट। Similar news headlines 2026, again history repeats, same event, newspaper headlines same, right? So that is how the lessons that we have to keep in mind, and always think in terms of numbers, in terms of probability, rather than on emotions, right? Emotions पे कभी हमें decisions नहीं लेने। Also the historical lessons particular to geopolitical tensions, है ना। तो ये सब पुराने सभी geopolitical tensions वाले ही historical lessons है, right? Starting from a World Trade Center, then Pulwama attack, Uri strike, 26/11 Mumbai attack, Russia, Ukraine, Israel, Hamas, सभी चीजें वहाँ पे market falls because of concerns, right? But at the end of the day, it recovers when the things gets settled down, right? So such kind of an event or uncertainty creates a very good opportunity for long-term investing in a very slow and gradual manner, right? We cannot wait for the clarity to come. अगर बाजार में clarity आ जाती है ना, तो आपने देखा कि लास्ट यस्टरडे हाउ द मार्केट वेंट अप, राइट। हमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला, राइट। खुलते ही बाजार गैप अप ओपन था, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी आ गई थी कि हो सकता है कि सीज फायर होगा, और उसकी वजह से क्रूड आपका 95 आ गया, ठीक है। सो इफ यू वेट फॉर द क्लैरिटी, देन यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, राइट। सो यू टू इन्वेस्ट ओनली व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी और वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। और वो टाइम के अंदर हमें रिस्क को थोड़ा मैनेज करके हमें इन्वेस्ट करना है, और हम लोग देखेंगे कि अनसर्टेनिटी के अंदर भी कैसे निवेश किया जाता है, राइट। हाउ वन कैन इन्वेस्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्लैरिटी में तो सब लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, राइट, बिकॉज एवरीवन नोज कि क्या होने वाला है। बट द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और द हैंड होल्डिंग और द एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग द अनसर्टेन टाइम, राइट, एंड वी विल लुक इनटू इट हाउ टू इन्वेस्ट, राइट। So what we say is that stop predicting. Prediction करना छोड़ दो, start positioning, है ना। start positioning yourself कि ये सिचुएशन के अंदर मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। प्रेडिक्शन मेरे हाथ में नहीं है, टू बी फ्रैंक, वी ऑल्सो डोंट नो। हम लोग इतना सारा रिसर्च करते हैं, हमें भी नहीं पता कि क्रूड कहाँ जाएगा, कब गिरेगा, कितना गिरेगा, हमें कुछ नहीं पता। वी डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इनटू दैट। वी आर नॉट अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, हमें नहीं पता। हम लोग रिस्क मैनेज करते हैं, और रिस्क मैनेज करने के साथ साथ हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एंड वी हैव सीन कि ऐसे करने से हम लोगों ने काफी अच्छा एक्सपीरियंस दिया इन्वेस्टर्स को, राइट। सो व्हाट वी से इज दैट स्टॉप प्रेडिक्टिंग एंड स्टार्ट पोजिशनिंग योरसेल्फ टू इन्वेस्ट फ्रॉम हियर ऑन विद अ स्ट्रेटजी इन माइंड, विद अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन माइंड, राइट। तो वो फ्रेमवर्क क्या है, तो ये फ्रेमवर्क है, राइट। तो हमेशा आपको सोचना है कि कभी भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है ना, तो उसको ये 4 पार्ट के अंदर आप बकेट करके देखिए। वेदर दिस
situation is complex, whether the situation is complicated, whether the situation is chaotic or whether the situation is clear. ये चार में से कौन सी सिचुएशंस है जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, राइट? हाउ कैन आई आंसर? से फॉर एग्जाम्पल यू फेस एनी सिचुएशन, ट्राई टू गेट एन आंसर कि क्या ये सिचुएशन का आउटकम मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? अगर उसका आंसर यस आ रहा है ना, तो आपके लिए वो सिचुएशन एकदम क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर सिचुएशन फॉर यू, और मे बी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, राइट? अगर आंसर नो आ रहा है ना, तो देन दैट सिचुएशन कैन बी कॉम्प्लेक्स और इट कैन बी केओटिक इन नेचर। दूसरा सवाल ये पूछिए आप कि कैन द एनालिसिस इंप्रूव माई एक्यूरेसी? अगर मेरे पास जवाब नहीं है, प्रेडिक्शन नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं कुछ एनालिसिस करके उसमें से एक्यूरेसी ला सकता हूँ एज अ सेकंड स्टेप? अगर उसका आंसर यस आ सकता है, देन इन दैट केस दैट सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। इफ द आंसर इज नो, देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। और तीसरा आप आंसर दीजिए, क्या मेरे पास टाइम है ये एनालिसिस करने का? अगर आपका आंसर आता है कि नहीं, मेरे पास टाइम है ही नहीं, मुझे जल्द तुरंत से तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, देन इन दैट केस द सिचुएशन इज केओटिक। और ये हर एक चार सिचुएशन के अंदर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट। इन अ क्लियर काइंड ऑफ एन सिचुएशन, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिंपल। अगर आपके पास लमसम है, पैसा लगा दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किस्तों में लगाइए, SIP STP कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप फॉलो कीजिए आप। तो वहाँ पे बेस्ट जो रूल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं ना, वो फॉलो किए जाते हैं व्हेन द सिचुएशन इज क्लियर, जस्ट लाइक ड्राइविंग ए कार ऑन अ एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, तो एक्सप्रेस हाईवे में तो क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। वहाँ पे रूल फॉलो करना है, जस्ट खाली रूल फॉलो करना है कि ओवरटेकिंग नहीं करना, लेन चेंज नहीं करना है, और आपकी स्पीड बरकरार रखी है। तो ये रूल्स है जो मैंने फॉलो किए जब मेरी सिचुएशन क्लियर थी। वही चीज़ इन्वेस्टमेंट में करना है हमें। सिमिलरली अगर सिचुएशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और वहाँ पे हम एनालिसिस करके उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं ना, तो वो चीज़ के अंदर आपको एनालिसिस करना चाहिए, और वहाँ पे आपको एक्यूरेसी लाके जो आंसर मिलता है वो हिसाब से आप उसकी एक्शन लीजिए, राइट? सो फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, कंपनीज एनालिसिस के अंदर सिचुएशंस आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, है ना? GST रेट कट हुआ 15%, उसकी इम्पैक्ट कौन सी कंपनी में कितना सेल्स में इम्पैक्ट आएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड, लेमैन के लिए कॉम्प्लिकेटेड है ना? बट क्या मैं उसको एनालिसिस करके एक्यूरेसी मेरी बढ़ा सकता हूँ? आंसर इज यस। मैं उसको एनालिसिस कर सकता हूँ कि 15% GST कट होने की वजह से कितना प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड कितनी बढ़ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एनालिसिस करूंगा, और उसके देखने के बाद आई विल टेक द डिसीजन, राइट? सो सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार इन अ वेरी 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 हाई ट्रैफिक एरिया, राइट? तो वहाँ पे गूगल मैप की तरह वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वो आपको रास्ता निकाल के देता है, जस्ट यू फॉलो द मैप एंड यू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है? Coming to the complex situation, complex situations are what? It's like driving a car during a monsoon season, ठीक है? तो वहां पे गूगल भी हेल्प नहीं करता आपको, क्योंकि गूगल को नहीं पता कौन सी जगह पे कहाँ पे पानी भरा होगा। तो वहां पे द थिंग्स आर वेरी मच आई वुड से ट्रिकी इन नेचर। वहां से हल्के हल्के थोड़ा आगे बढ़ोगे आप, पता चलेगा पानी कम है, ज्यादा है, ऐसे करते 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 हमें आगे बढ़ना है, राइट? स्लो एंड स्टैगर्ड मैनर के अंदर यू सेंस, हमें थोड़ा जजमेंट लेना पड़ता है, फिर बाद में रिस्पॉन्स लेना पड़ता है, फिर जजमेंट लो, रिस्पॉन्स लो, जजमेंट लो, रिस्पॉन्स लो, ऐसे करते 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 हम लोग निकलते वहां से, राइट? एंड सिमिलरली फोर्थ सिचुएशन इज केओटिक, जहाँ पे मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं है एनालिसिस करने का। इमेजिन अ सिचुएशन कि मैं 12 मंजिले का कोई फ्लोर है, मैं नीचे खड़ा हूँ और ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है मेरे पर। तो क्या मेरे पास टाइम है कि ये पत्थर कौन सी डिग्री पे गिरेगा, मैं खड़ा रहूँ, कहाँ पे जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ? मेरा एक्शन क्या होगा? तुरंत जान बचाओ, यहाँ से भागो, राइट? आई इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम इट, क्योंकि वो पत्थर गिर रहा है, मैं उसमें एनालिसिस नहीं करा कि कौन सी डिग्री में गिरेगा वो। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज केओटिक इन नेचर, करेक्ट? बाजार में भी ऐसी सिचुएशन आती है केओटिक, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल आप पहले प्रोटेक्ट करते हो। वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इज टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल, ठीक है? अगर बाजार में इफ समवन ऑफ यू इज इन एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, अगर बाजार बहुत ही वॉलेटाइल है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमारा प्राइमरी गोल क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। कुछ नहीं करना है, बैठे रहो। गुड, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से भाव पे सौदा करूं, कब निकलूं, कब बेचूं, राइट? दे आर केओटिक सिचुएशंस, वॉलेटाइल, इंट्राडे वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हर एक सिचुएशन के अंदर ये सब चीजें, स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। नाउ कमिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ जियोपॉलिटिकल वॉर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन this is? I'll take a maybe 20 seconds of break. You can answer it in the chat box. I don't know whether it is enabled for answering purpose. Yeah, chat box is enabled, you can answer. I'll maybe pause for maybe 20-30 seconds. What kind of a situation the geopolitical tension that we are seeing in the West Asia, Israel Iran war condition, कौन सी प्रकार की ये सिचुएशन है? whether it is complex, whether it is complicated, whether it is clear or whether it is chaotic, आपको क्या लगता है?
Okay, I got one answer called chaotic in nature. Okay, second answer is complex. Sharmila also says complex. Okay, thanks. We'll move ahead in the interest of time. Yeah, so the correct answer is yes. It's a complex in nature, right? It's a complex in nature. The things is getting evolved. हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है और वो हमारे डिसीजन मेकिंग में कुछ नया नया इनपुट्स ऐड कर रही है ना. जस्ट लाइक ड्राइविंग ए कार ड्यूरिंग अ मानसून पीरियड. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि अभी लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आगे जाना है, कितना पानी भरा हो कितना नहीं पता. एवरी न्यू मूवमेंट, एवरी न्यू direction that you go, you get incremental newer information, and that is what the current situation. It is complex in nature. It is complex in nature. The events are shaping over the social media. Events are changing over the Twitter. Events are happening overnight. सुबह उठते हो तो कुछ अलग इवेंट होती है, right? And that is how the complex situation we are into. And what is the strategy that we have to adopt in case of a complex situation? Again, relate to the driving a car during monsoon. You don't stop at the place, है ना, वरना पानी भर जाएगा तो गाड़ी डूब जाएगी. तो हम लोग तो स्टॉप कर ही नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है. बट हमें उतना पता है कि आगे पता ही नहीं मुझे कहाँ पे खड्डा है, कितना पानी है, क्या है, नहीं पता मुझे, बट मुझे आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, राइट? सो इन दैट केस यू स्लोली ग्रेजुअली मूव अहेड. हल्के हल्के आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो एंड फाइनली यू रीच द डेस्टिनेशन. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वी शुड अडॉप्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे नहीं पता क्या बॉटम है, बट क्या पैसा लगाना है? आंसर इज यस. क्लैरिटी आ जाने के बाद पैसा नहीं लगा पाएंगे, अभी पैसा लगाना है. बट क्या पूरा पैसा लगाना है? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स. बट पैसा लगाना है, right? So now you know what the answer is, right? So you adopt the strategy whatever you like, but लगाना है पैसा. कोई बोलेगा मुझे पूरा लगाना है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर एसेट एलोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्कशन विथ योर एडवाइजर, आप डिसीजन लीजिए. कोई बोल रहा है मैं किस्तों में लगाऊंगा, तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, एसेट एलोकेशन, एडवाइजर के साथ बैठ के डिसाइड कीजिए, ऐसे कीजिए आप. कोई बोलेगा मैं ऐसे भी बढ़ाऊंगा, फेयर इनफ. कोई बोल रहा है मैं एसटीपी करूंगा, फेयर इनफ. जो भी करना है, स्ट्रैटेजी लेना है, आप लीजिए. क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है, बट हमें आगे बढ़ना है. हम एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकते क्योंकि बारिश हो रही है, हम लोग डूब जाएंगे. हमें आगे बढ़ना है. सिमिलरली हमें इसमें भी आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बट मुझे नहीं पता कि ये वॉर कब खत्म होगा, राइट? सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू choose and decide, but we have to invest, right? And that is what the message is all about. Apart from that, why we have to invest? Because the valuations has also come down. आप ये देखिए सितंबर 2024 में जो बाजार का वैल्यूएशन था, मैंने सितंबर 24 इसलिए लिया क्योंकि बिकॉज सितंबर 24 वाज द पीक ऑफ द मार्केट, है ना. वहां से हम लोग 18 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एंड वी हैव सीन दैट द मार्केट हैज सीन अ टाइम करेक्शन ऑफ 18 months. अलॉन्ग विद दैट वैल्यूएशन करेक्शन हैज ऑल्सो सीन. तो सितंबर 24 में निफ्टी का 500 जो 90% ऑफ द मार्केट कैप है, उसका पी जो था वो 28 था. मार्च 26 में वो 28 का पी हो गया 21. सिमिलरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द मार्केट वैल्यूएशन कंप्रेशन हुआ है. और ये वैल्यूएशन कंप्रेशन भी मुझे बोल रहा है कि मुझे पैसा लगाना है, मुझे लगाना है, बिकॉज वैल्यूएशन हैज आल्सो कम डाउन, राइट? सो वी आर गेटिंग अ कंफर्ट ऑफ वैल्यूएशन आल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस अनसर्टेनिटी. तो एक तो अनसर्टेनिटी है ही है, उसके साथ साथ मुझे वैल्यूएशन भी सपोर्ट कर रहा है कि पैसा मैं लगा सकता हूँ, या तो मुझे लगाना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Our in-house model, which is like a signal for us, right? As you see at the crossroad, orange, red और green, वैसे ही हमारे यहाँ पे एक हम लोग वैल्यूएशन, इंटरनल वैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं जो हमें सिग्नल देता है कि बाजार अभी ग्रीन है, ऑरेंज है या रेड है, राइट? सो अगर हमारा इन हाउस वैल्यूएशन मॉडल हमें सिग्नल रेड देता है ना, तो हम लोग जनरली कॉशियसली काम करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ. सिमिलरली इफ इट इज ऑरेंज, तो हम लोग न्यूट्रल वे में काम करते हैं उसमें, नाइदर टू बुलिश नाइदर टू नेगेटिव. एंड व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन, then we take a aggressive calls or maybe we are very positive on the market, right? तो वैसा हमने पूरा ये सिनेरियो हमने देखा है कि लास्ट 20 साल के अंदर, ये 20 साल से हम लोग मॉडल चला रहे हैं, और 20 साल के अंदर ये मॉडल ने हर बार कोई ना कोई सिग्नल्स दिए हुए हैं. और ये सिग्नल्स मैंने पूरे प्लॉट किए हैं सेंसेक्स की जर्नी के अंदर, ये कौन से लेवल पे क्या सिग्नल्स थी, राइट? एंड यू कैन सी इट इज ऑल अबाउट रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है? सो एवरी टाइम इट इज नॉट रेड ग्रीन, नॉर इट इज एवरी टाइम रेड, नॉर इट इज एवरी टाइम ऑरेंज, करेक्ट? सो वैल्यूएशंस कीप्स ऑन चेंजिंग. हम डिसीजन लेते हैं बाजार के नंबर पे देख के, 72,000, 70,000, 69,000, पर उससे पैसा नहीं बनता, उसके पैसा बनता है वैल्यूएशन से, ठीक है? तो ग्रीन में पैसा लगाएंगे तो पैसा, फ्यूचर के रिटर्न मेरे अच्छे रहेंगे. ऑरेंज में पैसा लगाऊंगा तो मेरे फ्यूचर के रिटर्न एवरेज रहेंगे, ऑन एन एवरेज. अगर मैं पैसा रेड में लगाऊंगा तो मेरे फ्यूचर के रिटर्न कैन बी नेगेटिव टू बिलो एवरेज. दैट इज द मैसेज दैट we have to take, that invest based on the signals, invest based on the valuations of the market. What is the current valuation or signal of the market? The current signal of the market is green. Look at the right side of your screen, extreme right, which is a green. Now our internal model
has also went to a signal of green. This is the part. March 2026 it has turned green in nature. और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लास्ट 20 साल के अंदर जब से हम लोग ये मॉडल चला रहे हैं, जब जब ये ग्रीन हुआ है, अगर किसी ने पैसा लगाया है 1 साल 2 साल 3 साल का मीडियन रिटर्न क्या हुआ है, सिमिलरली ऑरेंज में किसी ने पैसा लगाया तो क्या है और रेड में लगाया तो क्या है, राइट. सो नाउ द वैल्यूएशंस आर आल्सो सपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, and that is how we have to slowly and gradually build our positions as far as the equities are concerned, right. Within this whole market segment, the segment that we find very interesting to invest is the small cap part of the market, right. Small cap is very interesting at this point of time. The index would have corrected around 18%, 18% index level पे गिरावट हुई है, but individual stock level correction has been somewhere in the range of 25 to 40%, 25 to 40%, राइट. और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इंडेक्स को देख के नहीं कर सकते. इट इज ऑल अबाउट बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, राइट. और हमने देखा कि हर साल एवरी ऑल्टरनेट ईयर, जनवरी फरवरी मार्च, ये पहला जो 3 महीने होते साल के ना, वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं स्मॉल कैप में निवेश करने की, राइट. विच वी कॉल्ड एज सीजनल रेट, सीजनल फैक्टर. सीजनली जनवरी फरवरी मार्च आर वेरी म्यूटेड टू नेगेटिव मंथ्स फॉर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, है ना. तो आप देखो हर एवरी ऑल्टरनेट calendar year, small cap in the month of January, February, March has given a sharp fall, sharp drawdown होते हैं वहाँ पे. और वो drawdown पे मार्च में अगर हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कोई करते हैं तो वहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक भी हमको देखने को मिला हुआ है as far as the segment of the market is concerned, right. So from that point of view, this segment also looks interesting for someone who doesn't have investment into small cap, और मे बी हु इज अंडर इन्वेस्टेड, और किसी को ज़्यादा पैसा लगाना है तो वो बिल्कुल से ये सेगमेंट निवेश करने के लिए देख सकता है. क्विक अपडेट ऑन द करेंसी फ्रॉम द एज मेजर्ड बाय द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर जो कहते हैं हम लोग. आरबीआई इसका हर एवरी रेगुलर टाइम इसका स्कोर पब्लिश करता है उसकी वेबसाइट पे. एंड इफ द स्कोर ऑफ RRR रीर is greater than 100, then the currency is overvalued, and if this score is below 100, then it is undervalued, right. At this point of time the score is 95, and this shows that the Indian currency INR is very undervalued in nature. So from that point of view, we think that the worst seems to be over, provided the crude doesn't go up or maybe doesn't stay there for longer period of time. अगर वो वहाँ पे रहता है तो obviously it can have a pressure on the currency, but at this point of time the currency also seems a bit of an undervalued as compared to the 40 different currencies on the inflation adjusted basis, right. So this is how the broad update on the markets are concerned. Now quickly on the investment opportunities, so where one can look at investing. So one is obviously fund of funds. FOFs are very beautiful investment vehicle for someone to invest. Why FOF? तो see when it comes to investment ना, 3 प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं. There are only 3 decisions that are being taken when it comes to investments, right. There is no fourth decision, there are only 3. Which are those? First is a buy decision, obviously buy, ठीक है. इसके अंदर क्या आता है? What to buy, क्या बाय करना है, कब बाय करना है और कितना बाय करना है, ठीक है. सिंपल, क्या बाय करना है, कब और कितना, ठीक है. सेकेंड डिसीजन इज होल्ड, उसमें भी कब तक. एंड थर्ड डिसीजन इज सेल, उसके अंदर क्या सेल करना है, कब सेल करना है और कितना सेल करना है. अगर 100 शेयर है तो मैं 100 बेचूं, 10 बेचूं, 20 बेचूं, 25 बेचूं, कब बेचूं, और अगर मेरे पास 25 कंपनियां हैं तो कौन सी बेचूं, ठीक है. तो ये सब डिसीजन होते हैं. और सिमिलर डिसीजंस आर बीइंग आल्सो टेकन एट एन इन्वेस्टर लेवल हु इज इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स. अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ, मेरे पास 10 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, तो मैं भी यही प्रकार के डिसीजन लेता हूँ, बाय होल्ड सेल, 10 में से कौन सी लूँ, कब लूँ, कितनी बेचूँ, कब बेचूँ, काइंड ऑफ थिंग, राइट. व्हाट हैपेंस इन एन एफओएफ के अंदर ये सब डिसीजन जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में लिए जाते हैं, बिकॉज बाय नेचर दे आर फंड ऑफ फंड इन नेचर. एक म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, राइट. तो अंडरलाइंग एसेट जो है ना वो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, इक्विटी नहीं होता. हेंसफॉर दे आर कॉल्ड एज एन एफओएफ. और वहां पे एक एफओएफ खरीदने के साथ आपको क्या मिलता है, अंडरलाइन जो म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदी है ना वो फंड मैनेजर डिसीजन लेता है. फंड मैनेजर वो डिसीजन लेता है कि वो अंडरलाइन म्यूचुअल फंड स्कीम को कब बेचना है, कब तक होल्ड करना है, और कब अगर खरीदनी है तो कब खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, राइट. सो ऑल दीज 3 डिसीजंस इन एन एफओएफ आर ऑटोमेटिकली टेकन बाय फंड मैनेजर, एंड दैट टू इन अ साइंटिफिक मैनर, मॉडल ड्रिवन, रैशनल डिसीजन, नॉट ऑन इमोशंस, है ना. हम लोग क्या करते हैं, हमसे क्या गलती होती है, हम लोग खुद म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं,
और वहाँ पे 90% ऑफ द पीपल बाय म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। मैं ऐसा नहीं कह रहा पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। अगर 10 क्राइटेरिया तो उसमें से एक क्राइटेरिया पास्ट परफॉर्मेंस, बट हमारे लिए क्या है कि एक ही क्राइटेरिया होती है और वो एक है पास्ट परफॉर्मेंस, और बाकी की 9 क्राइटेरिया हमारे पास है ही नहीं कोई फंड खरीदने के लिए, ठीक है। बट फंड मैनेजर के पास वो है, वो फंड जो म्यूचुअल फंड खरीदता है वो फंड के अंदर स्टॉक्स है, उसके वैल्यूएशंस क्या है, उसके सेक्टर एलोकेशंस क्या है, वो सेक्टर का आउटलुक क्या है, वो हिसाब से वो फंड खरीदता है म्यूचुअल फंड, राइट। ओवरवेट क्या है, अंडरवेट क्या है, फंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है जो फंड में वो निवेश कर रहा है, फंड मैनेजर क्या फॉलो कर रहा है, वो फंड में फंड मैनेजर की सैलरी कितनी जा रही है, कई सारी चीजें देखी जाती है। ऑन बेस्ड ऑफ दैट फंड मैनेजर बाइज दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट। हेंस फॉर दिस एफओएफ बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू लुक एट इट फॉर योर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो एफओएफ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आप देखिए बिल्कुल पैसा लगाने के लिए। हमारे पास काफी अच्छा सा बड़ा सा बुक है एफओएफ का। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका एफओएफ है, हाइब्रिड है हमारे पास एफओएफ, देन वी हैव सेक्टरल एफओएफ एंड सो फॉर, राइट। तो दैट इज व्हाट यू कैन डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट एफओएफ इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक एट इट व्हेन इट कम टू इन्वेस्टमेंट। दूसरा आप एसआईएफ देख सकते हो, विच इज अगेन अ वेरी न्यू इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट into the market, right? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव अ हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, राइट, विद अ सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क कैन आई इंक्रीज द टोटल रिटर्न, एंड दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईएफ इज ऑल अबाउट। तो वो भी एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हमारे पास 2 एसआईएफ्स है, वन इज द हाइब्रिड लॉन्ग शॉट, हमने फरवरी 2026 में उसको लॉन्च किया था, और उसका कैप्चर रेशियो आप देखोगे, द कैप्चर रेशियो ऑफ द फंड इज 1.69। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि वो गिरा तो गिरा ही है, बट रिकवरी के टाइम पे जितना गिरा था उससे ज्यादा बढ़ा है ना। अगर वो 100 रुपये गिरा है ना तो वो 170 रुपये बढ़ा है, 100 रुपीज गिरा है तो इट हैज गॉन अप बाय 170 रुपीज, राइट। हेंस फॉर दैट टोटल कैप्चर रेशियो इज 1.69, करेक्ट। और कोई भी फंड के अंदर अगर ये कैप्चर रेशियो आपका 1 के ऊपर है ना, दैट मीन्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज वेरी मच इन योर फेवर एज एन इन्वेस्टर, इन योर फेवर एज एन इन्वेस्टर, राइट। जो सबसे खराब फंड है या तो फंड विच आर इन्फीरियर इन नेचर ना, उसका कैप्चर रेशियो इज बिलो 1, दैट मीन्स कि वो जितना तेज गिरते हैं ना उससे कम तेज से वो बढ़ते हैं। अगर वो 10% से गिरे है ना तो बढ़ोतरी के टाइम पे वो 9 बढ़ेगा या 8 बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से उसका कैप्चर रेशियो इज बिलो 1। जिसका कैप्चर रेशियो इज अबव 1 ना, तो वहां पे वो 10 रुपये गिरा है तो 12 बढ़ा है, 15 बढ़ा है, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ एसआईपी इज ऑल अबाउट, व्हिच इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वो कम गिरेगा और बढ़ेगा ज्यादा। और वहाँ पे एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉट फंड है, वो भी आप देख सकते हो, बट इट इज ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स विच कैन अफोर्ड मिनिमम टिकट साइज ऑफ 10 लाख रुपीज, और जिसके पास म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी एक्सपोजर है उनके लिए जनरली ये रिकमेंडेड है, बिकॉज दिस स्ट्रेटेजी यूज डेरिवेटिव्स। यहाँ पे डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के अंदर दिस स्ट्रेटेजी कैन बी वॉलेटाइल, बट अगर किसी के पास 2 से 3 साल का टाइम होराइजन है तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप अभी टॉपअप करने के लिए, नया पैसा लगाने के लिए ये आप बिल्कुल देखिए, which starts with 10 lakh rupees of a ticket size, which is a hybrid long short fund, right? So that is another recommendation that I would give. And the third recommendation would be on flexi cap fund, which is a normal, सबको पता है इसका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे हमारे फंड हाउस का जो व्यू है वो पूरा व्यू एक ही फंड के अंदर अभी कैप्चर हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज द फंड हाउस व्यू? फंड हाउस व्यू इज दैट कि यहाँ से अभी हमें किस्तों में पैसा लगाना है, हमें इक्विटी में पैसा लगाना ही है। तरीका क्या हो सकता है वो आप डिसाइड कीजिए कैसे करना है आपको, बट पैसा लगाना है। क्या मेरे पास क्लैरिटी है? आंसर इज नो, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। तो क्या मुझे रुक जाना है? आंसर इज नो, रुकना भी नहीं है, हमें पैसा लगाना है, करेक्ट। दैट इज अ व्यू। और उसके साथ साथ हमें बाजार ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो हमें पैसा लगाना है। साथ में हमने देखा स्मॉल कैप काफी अच्छा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो उसका एसेंस भी इसके अंदर कैप्चर होता है, राइट। सो बोथ ऑफ दिस एसेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी अलॉन्ग विद स्मॉल कैप एक्सपोजर, दोनों का आपको ब्लेंड जो है ना वो फ्लेक्सी कैप के जरिए मिलता है, विच इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड का फिलोसॉफी क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग, राइट। ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी ब्राइट है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अगर 10% से ग्रो हो रही है तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो होगा कि मैं ऐसी कंपनियों में निवेश करूं जो 10% से ज्यादा ग्रो, यानी इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनियां, राइट। तो वैसी कंपनियां फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करता है और वहां पे निवेश करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, करेक्ट। सो इट्स अ प्योर बॉटम ऑफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग एज फार एज दिस फंड मैनेजमेंट स्टाइल इज कंसर्न। अगर हम लोग ब्रेकअप करके देखें तो करीबन 60 से 65% है ना, आउट ऑफ 100 रुपीज 60 to 65% ऑफ द पोर्टफोलियो इज ग्रोथ ओरिएंटेड, राइट। जो मैंने समझाया आपको कि इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो होने वाली कंपनियां,
ठीक है, अगर मैं ऑटो सेक्टर में पैसा लगाता हूँ तो ऑटो एज ए सेक्टर इज ग्रोइंग से फॉर एग्जाम्पल एट अ 9%, तो मैं एज ए फंड मैनेजर विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कंपनी इनटू दैट ऑटो सेक्टर विच इज ग्रोइंग ग्रेटर देन 9%, 10, 12, 15 जो भी हो नंबर, बट उससे ज्यादा होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे ये फंड मैनेजर ने करीबन 60 से 65 रुपए ऐसी प्रकार की कंपनियों में लगाया हुआ है। ठीक है, फिर बाकी का जो पैसा है ना वो आपका बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा साइक्लिकल और कॉन्ट्रा पोर्टफोलियो है। हर पूरा 100 रुपया ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग कोई भी एक स्टाइल पूरा बायसनेस नहीं हो सकते। बैलेंस करने के लिए 30 से 35% हम लोगों ने साइक्लिकल और कॉन्ट्रा वाले फंड्स में या तो स्टॉक्स में लगाया हुआ पैसा, राइट। दैट इज ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टफोलियोज वाले पार्ट। उसके अलावा मार्केट कैप वाइज देखोगे आप करीबन 65% लार्ज कैप है, 27% स्मॉल कैप है और 8% मिड कैप है इसके अंदर, राइट। सो दिस फंड हैज अ हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ स्मॉल कैप इन द एंटायर फ्लेक्सी कैप इंडस्ट्री। टोटल फ्लेक्सी कैप के करीबन आज की तारीख में 31 फंड्स है आपके पास चुनने के लिए। ये 31 फंड्स जो है फ्लेक्सी कैप के नाम से, उनमें से ये फंड जो है वहाँ उसका सबसे हाईएस्ट स्मॉल कैप एक्सपोजर है, विच इज 27%, राइट। सो ओवर देयर यू गेट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द लार्ज कैप, जहाँ पे बाजार काफी अच्छा गिरा है और वैल्यूएशन भी काफी सस्ता है, साथ साथ स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मुझे सिंगल फंड के जरिए मिलता है। आप बेंचमार्क देखोगे, बेंचमार्क क्या है इसका, BSE 500, ठीक है। बेंचमार्क जो है उसमें से 70% कंपनियां लार्ज कैप है, ठीक है, 70% लार्ज कैप है, तो वहां पे लार्ज कैप का एलोकेशन मोरलेस सेम है। फिर मिड कैप जो है उसके अंदर वो करीबन 20% मिड कैप है बेंचमार्क में, तो यहाँ पे ये फंड मैनेजर ने मिड कैप खाली 8 ही लिया हुआ है, तो वहां पे मिड कैप में अंडरवेट है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। और स्मॉल कैप जो है बेंचमार्क में 10% है, यहाँ पे फंड मैनेजर ने 27% स्मॉल कैप्स लिया हुआ है, तो स्मॉल कैप में वो काफी बड़ा सा ओवरवेट पोजीशन है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क, करेक्ट। एंड दैट इज हाउ द ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पोर्टफोलियो इज, एंड हेंस फॉर वी थिंक दैट यू शुड लुक एट दिस इज द फ्यू होल्डिंग्स। आप देखोगे ये 27% जो स्मॉल कैप है ना, उसमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जो टॉप होल्डिंग्स में है ना, जो टॉप होल्डिंग है, टॉप 10 होल्डिंग्स में है उसका, और वो कंपनी के अंदर हम लोग एज ए फंड would be 6 to 7% of the company itself, right? And that is what the beautiful way of portfolio construction. एक 70% पोर्टफोलियो है, आप 65% पोर्टफोलियो आपका जो लार्ज कैप जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी लेता है, उसके साथ 27% स्मॉल कैप है जो ग्रोथ देता है लॉन्ग टर्म में, राइट। एंड दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ 70-30 और 65-20-30 समथिंग that has been created as far as this fund is concerned. Since inception 3 साल में लगातार every consistently it has beaten the benchmark. It has beaten the benchmark by 2 to 3%, right, over a 3-year period on rolling basis consistently, right. And that is what the history of the fund is all about. And finally on the SIPs, this is the Freedom SIP, which is also very interesting product feature. ये fund नहीं है, ये feature है Freedom SIP का। ये feature क्या कहता है, ये normal SIP नहीं है, ये ऐसी SIP है जो हमने पैकेजिंग किया हुआ है, जहाँ पे SWP का फीचर भी उसके अंदर इनबिल्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है SIP का टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 8 टू मैक्सिमम ऑफ 30। आपके गोल के हिसाब से आप कोई भी ले लो, 8 से लेकर 30 के बीच में कोई भी साल ले लो, वो साल आप ले लोगे ना, जो भी साल आप सिलेक्ट करोगे उतने साल तक आपकी SIP चलेगी, ठीक है। वो साल खत्म हो जाने के बाद अगले महीने आपका हर महीने SWP आनी शुरू हो जाएगी, वही एक्यूमुलेटेड आपका जो कॉर्पस हुआ है उससे पैसा हर महीने वापिस आना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SWP। तो वहाँ पे हमने ये टेबल दिया हुआ है, अगर मान लो 15 से 19 साल का आप टेन्योर सिलेक्ट करते हो ना, तो वहाँ पे आपको जितने अमाउंट की आपने SIP की उससे 3 गुना 3 टाइम्स वो टेन्योर खत्म हो जाने के बाद हर महीने आपको वो पैसा आपके अकाउंट आपके एक्यूमुलेटेड कॉर्पस में से SWP के फॉर्म में हर महीने वापस आना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज हाउ द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज। ऑलवेज लुक आउट फॉर डूइंग SIP इनटू स्टेबल फंड्स, राइट, नॉट वॉलेटाइल फंड्स, है ना। अगेन वी ऑलवेज लुक आउट फॉर फंड्स विच आर वॉलेटाइल फॉर हाई SIP रिटर्न्स, क्योंकि जितना फंड जाता है वॉलेटाइल उतना ही बेटर है SIPs के लिए, रिटर्न्स के लिए। बट आंसर इज नो, वो वॉलेटाइल जो फंड है ना वो आपके फेवर में काम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। इट्स लाइक टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। 50% गुंजाइश है कि वॉलेटाइल फंड आपको ज्यादा रिटर्न देगा और 50% गुंजाइश है कि वो वॉलेटाइल फंड आपको FD जितना भी रिटर्न दे सकता है ओवर 10 ईयर पीरियड। तो वॉलेटिलिटी इज नॉट एश्योरेंस, इज नॉट अ सर्टेनिटी कि 10 साल में मेरा अच्छा रिटर्न बनेगा ही बनेगा SIP के अंदर। नो, इट्स अ स्टेबल SIP फंड्स दैट वन शुड लुक आउट फॉर डूइंग एन SIP, राइट। क्योंकि स्टेबल SIP जो फंड है ना, वहां पे आउटकम जो है वो काफी स्टेबल रहते हैं, प्रेडिक्टेबल रहते हैं ओवर ए long period of time. So always look out for stable SIP funds rather than volatile SIP funds, right? That is what the lesson is all about. These are our leading flagship or maybe the key recommended SIP funds of ours,
इक्विटी एंड डेट फंड, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी एसेट, लार्ज कैप, ये हमारे फ्लैगशिप फंड्स है जो हमारे की रिकमेंडेशन है फॉर डूइंग एन SIP। आप देखो 10 साल के रिटर्न्स उसके रोलिंग बेसिस पे एवरेज, they are very much encouraging in nature and they are stable also, right? So from that you can select any of the schemes as per your convenience. Apart from that, if your SIPs, existing SIPs are giving single digit to negative return, then in that case have patience, increase the time horizon by 1 or 2 years, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है कि जब जब ऐसा मौका आया हुआ है जहाँ पे SIPs ने नेगेटिव टू सिंगल डिजिट रिटर्न दिए हैं और वो टाइम के अंदर अगर निवेशकों ने उनका होराइजन 1 से 2 साल अगर बढ़ा दिया SIP का, तो वो SIP के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रिकवर हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे रिकवर हो जाते हैं, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट द हिस्टोरिकल लेसन्स आर। से फॉर एग्जांपल मार्च 2016, ऐसे कई सारे, मैं जब एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्च 2016 के अंदर किसी ने SIP शुरू की थी, राइट? तो पहले साल का SIP का रिटर्न 17%, दूसरे साल का रिटर्न 11%, तीसरे साल का 14% रिटर्न, है ना, मार्च 16 की SIP का। और चौथे साल के अंदर वो मार्च 16 में जो SIP मैंने चालू की थी ना, चौथे साल के अंदर वो नेगेटिव -5 हो गया, वो नेगेटिव -5 हो गया। तो व्हाट इज द गोल्डन रूल? द गोल्डन रूल इज, अगर SIP का रिटर्न नेगेटिव सिंगल डिजिट आता है तो वो SIP को आप 1 से 2 साल बढ़ा दीजिए, आपकी SIP का रिटर्न सुधर जाएगा। कितना होगा वो मुझे नहीं पता, तो सुधर जाएगा। तो वहाँ पे -5 जो था ना चौथे साल में, 5वें साल में वो बढ़ के 16 हो गया, 16% पॉजिटिव, ठीक है। छठे साल में 16, फिर 17, 13, फिर 15, ऐसे ऐसे करते उसके SIP स्टेबल हो गई, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट थिंग्स आर। सो नाउ मे बी किसी ने 1 साल में की है तो 1 साल में शायद नेगेटिव रिटर्न है, किसी के 2 साल का भी शायद नेगेटिव टू सिंगल डिजिट होगा, तो वहाँ पे उनके लिए ये लेसन है। 3 साल का भी नेगेटिव सिंगल डिजिट हो सकता है, तो वहाँ पे ये लेसन है कि सर सब्र रखिए, कंटिन्यू योर SIP, फोकस इन योर गोल्स और उसको आगे बढ़ाते जाइए, थिंग्स विल improve, right? So that is what the lessons or SIP is all about. So let us summarize and conclude this event. Summary is that March 26 very rare month जहाँ पे बाजार 11% से ज़्यादा गिरा। लास्ट 47 ईयर्स की हिस्ट्री में दिस हैज हैपेंड ओनली 19 टाइम्स, ओनली 19 टाइम्स इट हैज हैपेंड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ लास्ट 47 ईयर्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। हिस्ट्री सजेस्ट कि एवरी टाइम जब भी रीजन होती है वरी के लिए, देन वॉलेटिलिटी इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। करंट जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैज लेड टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिसकी वजह से बाजार काफ़ी चिंतित है। उसकी वजह से क्या हुआ है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हो चुके हैं एंड टाइम हैज कम टू टॉप अप इन इक्विटीज। स्मॉल कैप्स मार्केट कैप वाइज अच्छा लग रहा है। ऑन द रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड स्कीम्स जो मैंने समझाया आपको, अलॉन्ग विथ SIF एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज द फ्रीडम SIP, समथिंग दैट यू शुड look at it, right? So with that I will